Hey learners, hope you all are doing well. I welcome you all to this new course, that is Theory of Computation. Getting? This is a very important subject in third year engineering. Generally it is for IT, computers, okay, from computer branch, for information technology, even it is for BSc computer science also. Getting? And even for some master courses also. Okay, so this subject is very interesting, scoring as well. It is mathematical base. Okay, and then further you'll see how you can do the implementation of this mathematical concepts. Okay, so it is very scoring subject. Okay, so without wasting time, we'll start with this course. But before that, I'll just give a short introduction about myself. Now, many of the students might have attended my Python course, so they are already aware about me. But again, those who are going to attend this subject for the first time, for them, I'm just going to give a short introduction. I'm myself Ajit More. I am located in Pradhikaran, Akurdi, Pimpri Chinchwad. Okay, and I'm Bachelor of Computer Engineering, 1998 pass out, and I'm from there, that time onwards, I'm into software training, software development, content creation, lot of things. So I have around 25 years experience in software training. I'm teaching different courses, mostly programming courses and some mathematical subjects like for engineering, BSc people, masters also. Okay, and I'm into content creation also. I've developed some projects also, as well as I do software development. Even I have made some books for engineering students and all. Okay, so short introduction. Mostly I'm into training. Okay, so I hope you will enjoy this whole learning process. Okay, so without wasting time, we will start with our course, that is Theory of Computation. Prerequisite for this course is little bit knowledge about discrete mathematics. I hope you are aware about set theory, graph, relations and all those things. So little knowledge of that is needed. And next is about data structures. You should have basic understanding of data structures, algorithms, asymptotic notations, means time complexity and all. So these basic things which you might have studied in your second year course, that is in data structures and all. Okay, or in first year discrete mathematics and all. So all that basic things are needed for this course. Okay, so directly I'll not start with the unit number 1. Before that, we have to go with some basic terminologies which will make this subject clear to you. Okay? First, we have to answer what is computation. Okay, so you can say computation means calculation. Okay, any type of calculation, कोई भी type का calculation जिसको आपने करने के लिए किसी एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स का यूज़ किया है, किसी फिक्स प्रोटोकॉल को या अल्गोरिथम को फॉलो किया है, एक फिक्स मॉडल को फॉलो किया है. गेटिंग मीन्स कंप्यूटेशन कर रहे हो, लाइक दिमाग में हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, बट यहाँ हम लोग स्पेसिफिकली वो कैलकुलेशंस जिसको करने के लिए आपने एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किए या एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, एंड वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हमने जो भी कंप्यूटेशन किया है, जो भी रिजल्ट आता है, उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन. गेटिंग? तो कंप्यूटेशन मीन्स एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन जिसमें लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रिमाइंडर निकाल रहे हो, रेस टू निकाल रहे हो, कंपेयर कर रहे हो. गेटिंग? एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ, ये लेसर है या ग्रेटर है या एग्जैक्टली सेम है, जो भी है, अलग अलग टाइप के
कैलकुलेशंस, बट उन कैलकुलेशंस को करने के लिए अपने एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स या एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। एंड इसलिए मैंने कहा ये सब्जेक्ट शुरू करने के पहले कि प्रीरिक्विजिट इज एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये जो हमने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के कोर्सेस में पढ़ा रहेगा लाइक, ठीक है। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया अबाउट कंप्यूटेशन। तो एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, जैसे मैं कहा कैलकुलेशन कैन बी रेस टू निकाल रहे हो, रिमाइंडर निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, एनीथिंग, बट दैट कैलकुलेशन इज फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड मॉडल। अभी वो वेल डिफाइंड मॉडल मीन्स क्या, कि जिसमें एक फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिसाइडेड है और वो इंस्ट्रक्शंस कितना टाइम लेंगे, कितना स्पेस लेंगे, ये सब तय हुआ है, गेटिंग। एंड उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से, गेटिंग, हमने क्या लिखा है, एल्गोरिथम, या हम उसको प्रोटोकॉल कहेंगे। प्रोटोकॉल मीन्स यू कैन से अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स, फिक्स सेट ऑफ रूल्स आर देयर। तो एल्गोरिथम भी क्या है, आपने रूल्स लिखे हैं कि पहले ये कर, दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर, इसको मेमोरी में स्टोर कर, फिर उसमें से पहली वैल्यू रजिस्टर में ला, उसके साथ दूसरी वैल्यू ऐड कर, ये जो भी आया हुआ रिजल्ट है रजिस्टर में वो मेमोरी में जाके स्टोर कर, फिर मेमोरी की वैल्यू आउटपुट को दे। तो आपने एक सीक्वेंस ऑफ क्या लिखे है, इंस्ट्रक्शंस, एंड ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जो भी कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशन, गेटिंग। एंड कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, गेटिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओके। तो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटेशन क्या है ये क्लियर है। फिर हम लोग और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ओके। तो हमें एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन करना है, बट वो कैलकुलेशन एनी हाउ करना है या एक फिक्स प्रोटोकॉल फॉलो करेगा या एल्गोरिथम फॉलो करेगा, ऑब्वियसली एक एल्गोरिथम। तो अभी इनका कहना क्या है कि वो कंप्यूटेशन करने के लिए जो कोई एक एल्गोरिथम आप फॉलो कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम लिखने के लिए आप लोग एक फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करोगे कि यही अलावेबल ऑपरेशंस है, कि ऐड है, सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, लेसर है, ग्रेटर है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है। तो एक फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड ईच ऑपरेशन का कॉस्ट तय करना है। अभी आप कहोगे कॉस्ट किसके टर्म में, कॉस्ट बोला तो हम लोगों को रुपीज़ के टर्म में ही आता है। तो यहाँ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कितना ये हर एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कितनी जगह लेगा, ये हर एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू का कितना टाइम यूटिलाइज करेगा, गेटिंग। तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन का कॉस्ट एंड क्या अलावेबल ऑपरेशंस है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशन, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, गेटिंग। एंड किसी भी कंप्यूटेशन को जाने के लिए एक मॉडल तय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से आप लोगों को अपने कंप्यूटर के लिमिटेशंस भी पता चल जाता है कि बाबा ये सिस्टम पे ये टाइप के ऑपरेशन नहीं चलेंगे या चलेंगे। एंड इवन अपने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी भी पता चलती है कि बाबा अपना एल्गोरिथम कितना स्पेस लेगा, कितना टाइम लेगा, गेटिंग। तो इन शॉर्ट कंप्यूटेशन को जाने के पहले वो कंप्यूटेशन का एक मॉडल तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटिंग। तो व्हाट इज मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन? तो डिफाइनिंग द सेट ऑफ अलावेबल ऑपरेशंस, एक फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशंस तय करना है कि ऐड ही हो सकता है या सबट्रैक्ट ही हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, क्लियर। तो यू आर डिसाइडिंग द फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशंस and the cost of each operation, getting. So defining the set of allowable operations used in the computation and their respective cost. अभी respective cost में समझ में है कि each instruction, जैसे अभी addition है तो वो CPU का कम टाइम लेगा, multiplication will take more time, getting. Exponent operation कर रहे हो तो वो और भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हर एक ऑपरेशन के टाइमिंग अलग रहेंगे, हर एक ऑपरेशन का मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट ये अलग रहेगा,
गेटिंग? ये क्यों तय करना है, मैंने वाई वी हैव टू डिसाइड अ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन? तो आई टोल्ड यू इट डिसाइड्स द limitations of your system, or it will decide how many resources your algorithm will take, कितने resources लगने वाला है, meaning कितना space लेगा, कितना CPU का time लेने वाला है, getting? तो एंड इवन तुम्हारे सिस्टम की लिमिटेशन क्या है कि वह मैंने ये एक algorithm लिखा है बट ये इस मशीन पे चल सकता है बट इस पे नहीं चल रहा है, क्यों? कि कुछ ऑपरेशंस उस मशीन पे सूट नहीं हो रहा है या सपोर्टेड नहीं है, गेटिंग? तो इन शॉर्ट इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मीन्स जो आपने फिक्स सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं, किसके लिए वो रूल्स लिखे हैं? फॉर डूइंग सम टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तय करने के लिए यूज होता है. कौन? मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. एंड एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मीनिंग कितना टाइम लेने वाला है, कितना स्पेस लेने वाला है. क्लियर? हाउ मच memory in terms of bytes it's going to take, or in terms of word, how much CPU cycles it's going to take, getting? And इसका फायदा क्या होने वाला है? तो it helps to analyze the computational resources required. कितने resources आपके सिस्टम के लगने वाला है, कि कितनी मेमोरी लगेगी, कितना CPU का टाइम लगेगा. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द लिमिटेशंस ऑफ योर एल्गोरिथम बोलो या फिर आपके कंप्यूटर, कि आपका एल्गोरिथम क्या काम कर पा रहा है या आपके सिस्टम क्या टाइप का ऑपरेशन कर पा रहा है या क्या नहीं कर पा रहा है. लाइक गेटिंग? ओके, देन वी विल बी मूविंग टू वन मोर डेफिनेशन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज कंप्यूटेशन and what is model of computation, getting? तो in short याद रखना है, computation means any type of calculation but which are done using some algorithm, okay? And model of computation means वो algorithm run करने के लिए हम लोगों को या लिखने के लिए हम लोग एक फिक्स सेट ऑफ क्या तय करेंगे, इंस्ट्रक्शंस, एंड हर एक इंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी डिसाइड करेंगे, जो एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए एल्गोरिथम एंड तुम्हारे कंप्यूटर के लिमिटेशंस एंड एबिलिटी डिसाइड करता है. गेटिंग? अभी आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस. व्हाट इज थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस? तो यू कैन से इट इज ब्रांच और इट इज अ सब फील्ड और सबसेट ऑफ अ वेरी बिग फील्ड कॉल्ड कंप्यूटर साइंस. तो कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड है, तो यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, गेटिंग? विच ओनली फोकसेस ऑन द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर कंप्यूटेशन. मीन जो भी आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं किसी एल्गोरिथम को यूज करके, उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देता है. मीनिंग कि ये कितना टाइम लेगा, कितना स्पेस लेगा, गेटिंग? एंड ये टाइम एंड स्पेस सब निकालना है तो आपको सब कुछ मैथमेटिकल बेस पे ही ये डिसाइड करना पड़ेगा, गेटिंग? उसके लिए फिर कुछ नोटेशंस यूज होते हैं, बाउंड्स हमें है, फिर इसलिए हमने 11th-12th में 11th एंड 12th के कोर्स, मैथमेटिक्स कोर्स में हमने लिमिट्स पढ़े थे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. तो वो कंसेप्ट भी कैसे एप्लीकेबल होता है यहाँ, ये सब पता चलेगा तुम्हें, ओके? तो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस means it's a branch of one general category called computer science, branch of general computer science and mathematics that mainly focuses on what? The mathematical aspect of computation, getting? तो mainly वो किस पे focus करेगा कि mathematical aspects, meaning कि कितना time, कितना space ultimately, getting? This field includes algorithm. ये मैंने सिर्फ फील्ड्स के नाम लिखे हैं. इन सब ये सारे फील्ड किसके अंडर आते हैं? थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस. तो ये फील्ड में हमें एल्गोरिथम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट आर एल्गोरिथम्स, फिर एल्गोरिथम लिखे कैसे जाते हैं, फ्लो चार्ट्स है, सूडो कोड्स है, सिंपल इंग्लिश है, व्हाटएवर. तो एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी,
कि मेमोरी सिक्वेंशली रखी है क्या, तो अरे है एनीवेयर, बट वो सिक्वेंशली कनेक्टेड है तो लिंक लिस्ट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में रखा है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो स्टैक है, क्यू है। इरेगुलर डेटा रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफ्स है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थियरी। अभी आप कहोगे ये क्या है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थियरी? ये डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं, एंड हो सकता है तो उसको कितना रिसोर्सेस एंड टाइम लगेगा। उसके लिए ही फिर हमें यहाँ लिमिट्स एंड असिम्प्टोटिक नोटेशन सब लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन मीनिंग कंप्यूटेशन जो एक से ज़्यादा मशीन पे ब्रेकअप किया, कि एक ही मशीन पे नहीं चल रहा है आपका कंप्यूटेशन, अलग अलग मशीन, क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट है। गेटिंग कि कुछ पार्ट एक मशीन पे चल रहा है, कुछ पार्ट दूसरे मशीन पे चल रहा है, फिर उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कुछ सेंड कर रहा है, फिर वो रिसीव करके उसको प्रोसेस करके वापस से रिप्लाई दे रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन। तो ऐसे केस में भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट, मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में भी कितना स्पेस, कितना टाइम। पैरेलल कंप्यूटेशन है। अभी कुछ लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल क्या? पैरेलल कंप्यूटेशन मीन्स एक ही सिस्टम पे चल रहा है बट जिसपे एक से ज्यादा सीपीयू है, सीपीयू एक से ज्यादा लगाए हैं। देयर इज नो वन प्रोसेसर, देयर आर मेनी प्रोसेसर्स एंड ऑल दीज प्रोसेसर्स आर इन अ मास्टर स्लेव मैनर एट अ टाइम वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कोड। मीन्स आपके कोड को ही डिवाइड किया एंड कुछ कोड एक सीपीयू को दिया है, एक कोड दूसरे सीपीयू को तीसरा, एंड ये सारे सीपीयू एट अ टाइम काम करने के लिए लगे हैं। तो पैरेलल कंप्यूटेशन है। गेटिंग? ऑटोमेटा थियोरी है। इसमें हम देखेंगे कि मशीन्स कैसे डिजाइन करने हैं ऑन अ मैथमेटिकल मॉडल, अगेन एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स, एंड बाद में जाके फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स है वो उसको जाके रियल में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटा थियोरी में हम देखने वाला है कि कैसे मैथमेटिकल मॉडल पे मशीन्स डिज़ाइन करेंगे। ये मशीन्स कुछ इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे, कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे। गेटिंग? एंड वो आउटपुट क्या फॉर्मेट में हो सकता है वो सब देखेंगे। तो ऑटोमेटा थियोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फील्ड किसके अंडर ही आते हैं? थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। गेटिंग? देन वी विल बी मूविंग टू व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, तो आई होप till here all the terminologies are clear to you. This is creating the background of the subject. याद रखना, theoretical computer science बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, या थियरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू विल रियली एंजॉय लर्निंग इट। बहुत प्रॉब्लम बेस्ड है, जिनको लॉजिकल वे या जिनको मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा लगता है वो तो रियली एंजॉय करेंगे। एंड कुछ लोग ये भी लेवल पे जाके सोचेंगे कि ये जो भी मैथमेटिकल मॉडल पे हमने पढ़ा है इसको फिर रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या वॉट एवर, इवन इन सॉफ्टवेयर सिमुलेशन ऑल्सो यू कैन डू। ओके, तो थियरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है वो देखना है। इट इज अगेन द फर्दर सब ब्रांच ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो एक बिग क्लास है कंप्यूटर साइंस, उसका एक सब कैटेगरी है दैट इज थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अंडर आता है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, which mainly focuses on design of machines, and it mainly focuses on how much resources that computation is going to take, okay, and what will be its complexity. And complexity दो aspects से decide होती है। एक होता है time, that is how much time that computation is going to take, and space कि वो computation करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम का कितना जगह यूटिलाइज किया। गेटिंग? तो इन शॉर्ट, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर मेनली मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे हम लोग कंप्यूटेशन की स्टडी करते हैं। गेटिंग? तो यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स that deals with how efficiently the computation can be done,
That is how efficiently the problem can be solved on a model of computation. मैंने कहा model of computation means हमने एक फिक्स सेट ऑफ क्या तय किया है, इंस्ट्रक्शंस, एंड हर इंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी डिसाइड किया है, एंड फिर उसी इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम्स लिखेंगे, किसके लिए, फॉर डूइंग सम टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. गेटिंग? तो मेनली थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन किससे डील करता है? तो इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ finding out the efficiency of your algorithm which you have run on some model of computation. एक कोई तो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन आपने डिसाइड किया और उस पे आपने वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट किया, एंड वो एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, वो एफिशिएंसी डिसाइड करने का जो ब्रांच है, इसको हम कहते हैं थियरी ऑफ कंप्यूटेशन. गेटिंग? एंड ये एफिशिएंसी कैसे डिसाइड होती है? तो बाय टू थिंग्स. द फील्ड इज डिवाइड, एंड ये पूरे इसमें क्या आएगा, टाइम आएगा, स्पेस आएगा. गेटिंग? तो ये पूरा जो फील्ड है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, 3 मेन ब्रांचेस है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके 6 यूनिट्स डिवाइडेड है. तो फर्स्ट इज ऑटोमेटा थियरी. अभी ऑटोमेटा थियरी मीन्स हम मैथमेटिकल मॉडल पे क्लियर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स डिजाइन करेंगे. गेटिंग? अभी वो मशीन कुछ इनपुट लेगा एंड फिर वो मशीन तय करेगा कि वो इनपुट वैलिड है या नहीं है. गेटिंग? कुछ मशीन्स ऐसे हैं जो कंप्यूटेशन भी करेंगे, मीन्स कुछ रिजल्ट लाके देंगे. इट विल ब्रिंग एंड गिव द रिजल्ट नॉट ओनली इन यस नो फॉर्म, इट विल गिव यू द रिजल्ट इन सम अदर कैलकुलेटेड थिंग, लाइक कि आपने कुछ इनपुट दिया है तो कुछ और कैलकुलेट होकर आया है. एंड कुछ ऐसे रहता है जो सिर्फ डिसीजन लेता है, यस है या नो है, लाइक. गेटिंग? तो ऑटोमेटा मीन्स ओनली मशीन, एंड हमें अलग अलग मशीन्स का स्टडी करना है इधर. तो पहले अराउंड 5 यूनिट्स तो उसके ऊपर ही डिवोटेड है. फिर दूसरी फील्ड है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी. कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी सिर्फ डिसाइड करता है कि कितने एक्सटेंट तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है कि नहीं, हो सकता है तो सेमी सॉल्वेबल है या कंप्लीटली सॉल्वेबल है. गेटिंग? तो ये थियोरी सिर्फ क्या डिसाइड करता है कि टिल व्हाट एक्सटेंट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. एंड वी हैव कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. तो आपकी जो लास्ट यूनिट है ये पूरा इसके लिए डिवोट किया है उन्होंने. गेटिंग? अभी कहोगे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी मीन्स व्हाट? तो यहां हम लोग ये तो तय करते ही है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं या नहीं हो सकता है, मीन्स दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, दिस कैन बी सॉल्व, तो टिल व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी सॉल्व, ये तो करता ही है. प्लस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिसाइड करता है. कॉम्प्लेक्सिटी किसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं? इन फॉर्म ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा रहेगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, लाइक बिग ओ है, बिग में ओमेगा नोटेशन है, थीटा नोटेशन है. गेटिंग? लिटिल ओ, लिटिल ओमेगा. तो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज होता है. तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थियरी सिर्फ कंप्यूटेबिलिटी थियरी नहीं डिसाइड करता है, इवन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो उस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी भी डिसाइड करता है. गेटिंग? एंड कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करता है? बाय asymptotic notation. Find out करने के बाद express, how do we express the complexity like in terms of asymptotic notations. Okay, तो in short आपको पता चला theory of computation क्या है. तो theory of computation means it's a branch of theoretical computer science and mathematics which mainly focuses on the analysis of your algorithm on some model. And in this field 3 main things are there. First is you have to design the machine for solving your problem. आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक मशीन डिजाइन करना है. फिर आपको तय करना है कि ये प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट तक सॉल्व हो सकता है. एंड फिर ये तय हो गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. तो ये 3 मेन फील्ड है इन द थियरी ऑफ कंप्यूटेशन. Then what is automata theory like? Okay,
तो ऑटोमेटा मीन्स ओनली मशीन, यू कैन से ऑटोमेटा मीन्स मशीन, ठीक है। एंड ये मशीन्स हम लोग एक्चुअली फिजिकली नहीं बनाने वाला है, लाइक दोज हु आर फ्रॉम दैट फील्ड दे कैन डू इट। लाइक ये हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे ऑन द मैथमेटिकल मॉडल, एब्स्ट्रैक्ट मशीन on a mathematical basis, but later like those who are from digital electronics and all, from electrical engineering and all, those who are from mechanical engineering, they may try to implement it in their respective field. Those who are from computer background, they'll try to simulate it using a software, means कुछ program लिखेंगे जो इस machine को simulate करेगा, getting? तो automata means machine। तो ऑटोमेटा थियरी बेसिकली क्या डील करता है? इट डील्स विथ मशीन डिजाइन ऑन द एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल, गेटिंग? एंड ये मशीन्स कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, गेटिंग? एक्चुअली ऑटोमेटन इज अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है, और उनके हिसाब से समथिंग विच इज डूइंग समथिंग ऑन इट्स ओन, गेटिंग? तो वो समथिंग मीन्स कौन है? वो मशीन है। वो मशीन ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। इनका कहना है कि आपको सिर्फ इनपुट देना है और आगे मशीन खुद ही कंप्यूटेशन करके आपको रिजल्ट ला के देगा, बट वो डिज़ाइन तो किसी ना किसी ह्यूमन ने ही किया रहेगा ऑब्वियसली, गेटिंग? तो एक बार डिज़ाइन हो गया तो उसके बाद वो अपने आप काम करते रहेगा। दैट इज द वर्ड ऑटोमेटन, मीन्स समथिंग विच इज डूइंग समथिंग ऑन इट्स ओन, लाइक, ठीक है? तो ऑटोमेटा थियरी क्या है? इट इज द फील्ड वेयर वी विल बी डिजाइनिंग डिफरेंट मशीन्स ऑन द एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल, एंड दीज मशीन्स आर सॉल्विंग योर डिफरेंट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आप लोग ये मशीन्स बनाओगे, ठीक है? एक्चुअली ये जो मशीन्स है इनको उनके पावर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, गेटिंग? एंड आप कहोगे फिर पावर क्या है? एंड दैट्स ऑल, एवरीथिंग वी विल बी लर्निंग इन द रिमेनिंग यूनिट में। आपके जैसे जैसे यूनिट शुरू हो गए तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग पावर के मशीन्स पढ़ेंगे, मीन्स टाइप 3 मशीन, टाइप 2 मशीन, टाइप 1 मशीन, टाइप 0 मशीन, गेटिंग? टाइप 0 इज कंसिडर्ड टू बी द सुपर पावर, मीन्स सबसे पावरफुल मशीन टाइप 0, getting? Means computers can be put into type 0 machine, getting? तो calculators जो होता है वो type 3 machine में डाल दोगे, getting? तो you can say that machines are organized or classified according to their power. अलग अलग mathematicians है, उन्होंने ये classifications किए हैं, getting? तो type 3 machine, type 2 machine, type 1, type 0, तो इन machines का क्या वेरी हो रहा है? पावर। टाइप 3 का पावर बहुत कम है, टाइप 0 का पावर सबसे ज़्यादा है। आप कहोगे ये पावर तय किस पे होगा? तो पावर उसके एबिलिटी पे, वो मशीन क्या काम कर सकता है। तो हर एक मशीन का अपना अपना लिमिटेशन रहेगा। तो टाइप 3 का लिमिटेशन है, टाइप 0 का कुछ नहीं है। तो इट इज़ डिसाइडेड ऑन द एबिलिटी, व्हाट टाइप ऑफ वर्क दैट मशीन कैन डू, एंड इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड ऑन द मेमोरी, कितना स्पेस या स्टोरेज वो मशीन के पास है। मीन्स कुछ मशीन के पास लिमिटेड स्टोरेज है, कुछ मशीन्स के पास अबंडेंट स्टोरेज है, याद रखने का एबिलिटी, गेटिंग? तो उसके बेसिस पे ये मशीन्स के क्या होता है? क्लासिफिकेशंस होता है, गेटिंग? तो ऑल दैट वी विल बी लर्निंग इन द यूनिट्स वन बाय वन। तो व्हाट इज ऑटोमेटा थियरी? एज आई सेड, इट इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मशीन्स। मशीन्स डिजाइन करेंगे, एंड ये मशीन्स किसके लिए? फॉर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, गेटिंग? तो दिस इज स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मशीन्स एंड द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस मशीन। दीज मशीन्स आर एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोमेटा, गेटिंग? तो ऑटोमेटा मीन्स ही मशीन, राइट? एंड ये मशीन्स करते क्या है? तो ये मशीन्स अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेंगे एज अ इनपुट, गेटिंग? एंड ये मशीन्स बताएंगे कि ये इनपुट वैलिड है या इनवैलिड है। तो जितने भी वैलिड है वो एक लैंग्वेज तय करता है।
तो इन शॉर्ट ये मशीन एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है एंड जो लैंग्वेज में है उनको वैलिड बताएगा, जो लैंग्वेज में नहीं है वो इनवैलिड बताएगा। फिर लैंग्वेज अलग अलग क्राइटेरियाज पे बदलते रहेगा। गेटिंग? तो ऑटोमेटा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स समथिंग विच इज डूइंग समथिंग ऑन इट्स ओन इटसेल्फ। तो बट वो खुद से ही कर रहा है, बट उसको पहली बार आपने बताया है कि तुझे ये सब काम करना है, तो एक बार आपने उसको बता दिया तो उसके बाद वो खुद ही करते रहेगा। गेटिंग? ओके, तो ये ऑटोमेटा क्या करता है? तो इट इज एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग्स ओवर सम अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स एक सेट ऑफ वैलिड सिंबल्स। तो आपने एक फिक्स सेट ऑफ वैलिड सिंबल्स डिसाइड किया है और उन वैलिड सिंबल्स से हमने कुछ स्ट्रिंग्स बनाए एंड वो स्ट्रिंग्स हमने मशीन को दिए। फिर मशीन आपका बताएगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो जितने वैलिड है वो एक क्या फॉर्म करता है? लैंग्वेज फॉर्म करता है। तो दिस सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज। गेटिंग? देन these abstract machines are classified according to their power and इनका पावर किस पे तय होता है? मैंने कहा the power is decided on the ability, क्या काम कर सकता है। कुछ मशीन्स है जिनका पावर कम है, वो सिर्फ बता सकता है वैलिड है या इनवैलिड है, कि ये इनपुट जो दिया है वो करेक्ट इनपुट, रॉन्ग इनपुट। कुछ ऐसे मशीन्स है जिनका रिमेम्बरेंस एबिलिटी ज़्यादा है, वो याद ज़्यादा रख सकता है। कुछ ऐसे मशीन्स है जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट्स भी लाके देंगे। मैं 2 नंबर ऐड करके एडिशन का रिजल्ट लाके दिया, रिमाइंडर निकाल रहे हो तो वो रिमाइंडर लाके दे रहा है। गेटिंग? तो कुछ ऐसे मशीन्स है जो कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं। गेटिंग? तो इनकी पावर किस पे तय होती है? एबिलिटी एंड मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करोगे, मशीन्स डिज़ाइन करना, अलग अलग पावर के मशीन्स हम पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे टाइप 3 का जो मशीन है वो अभी हम लोग यूनिट 1 में देखेंगे। तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कैसे इसका पावर बहुत लिमिटेड है, कि इसके पास ज़्यादा याद रखने की एबिलिटी नहीं है। गेटिंग? एंड देन finally we have to discuss about what is computability theory and then computational complexity theory means what. Okay, तो computability theory means ये just आंसर कर रहा है कि प्रॉब्लम कितने एक्सटेंड तक सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है कि नहीं। फिलोसॉफी में कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग अ सोल्यूशन। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन you'll come to the mathematical aspect एंड फिर आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कभी सॉल्वेबल नहीं है, कुछ सेमी सॉल्वेबल है, मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर विच आर सॉल्वेबल। तो ऑल दैट डिसीजंस इज अंडर द फील्ड ऑफ कंप्यूटेबिलिटी theory, like getting? So deals primarily with the question of the extent to which the problem can be solved on a computer. Getting? And the last thing, that is computational complexity theory. इसके लिए पूरा एक 6th यूनिट डिवोट किया एंड फिर वो 6th यूनिट में बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होगी जो आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ी रहेगी, ग्राफ थियरी में, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट ऑन डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम, या फिर अपने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कभी तो पढ़ा रहेगा। काफ़ी चीज़ें आएंगी, हैमिल्टोनियन साइकिल, यूलेरियन साइकिल, ये सब चीज़ें जो डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ी है वो काफ़ी इधर रिकॉल होगी। ओके, तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी ये प्रॉब्लम्स के क्लासिफिकेशन करता है कि ये कंप्लीट सॉल्वेबल है, ये सॉल्वेबल है कि नहीं। तो ये फील्ड सिर्फ कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के लिए डील नहीं कर रहा है, मीनिंग कितने एक्सटेंड तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इट इज ऑल्सो डिसाइडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना स्पेस लेगा, कितना टाइम लेगा। एंड ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये कैसे एक्सप्रेस होती है? बाय एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। बिग ओ नोटेशन होता है, थीटा नोटेशन होता है। बिग ओ नोटेशन मीन्स अपर बाउंड बताता है। अपर बाउंड में वर्स्ट केस कि आपके प्रॉब्लम को मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। ओमेगा लोअर बाउंड कि कम से कम इतना लगेगा।
थीटा टाइट बाउंड, नियरली इतना टाइम लगेगा, गेटिंग? तो ये नोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी नॉट ओनली कंसिडर्स वेदर द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, मीनिंग कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी क्या डिसाइड करता है या क्या क्वेश्चंस को आंसर करता है कि वेदर द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, यस तो टिल व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी सॉल्व्ड। तो वो काम तो इधर हो रहा ही है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में, बट it is also deciding the efficiency of that problem, getting? But also how efficiently the problem can be solved. And efficiency कैसे decide होती है? By time and space. Time means how much time is needed to do that computation of that algorithm on that model, that machine model. Okay. So efficiency is studied by time complexity and space complexity, where time complexity means how many steps does it take to perform a computation and how much memory is needed for doing that computation, and this efficiency is well expressed using asymptotic notations, getting? तो asymptotic notations कभी तो आपने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में पढ़ा रहेगा, नहीं तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, गेटिंग? एंड नहीं तो हम लोग जब 6th यूनिट में पहुंचेंगे तो मैं ही आपको वापस से रिकॉल करके दूंगा, डोंट वरी फॉर इट, गेटिंग? ओके, तो मुझे लगता है ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं टू डाइव नाउ इनटू द एक्चुअल सब्जेक्ट, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, तो अभी हमें एक्चुअली किस में एंटर करना है? द सब्जेक्ट थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। आई एम श्योर यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, गेटिंग? एंड यू विल रियली एंजॉय इट। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर मैथमेटिकल बेस्ड। आप लोग इसके एग्जाम्पल्स जब सॉल्व करेंगे, अबंडेंट ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपका पेपर वैसे ही बना हुआ रहता है, मोर ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके पेपर में, तो abundant of examples will solve for machine design, and we will also discuss about the complexity of it, like, ठीक है? तो in short we got to know about what is theory, what is computation. First thing, what is computation? What is theory of computation? What is theoretical computer science? Getting? What is this whole thing made up of? तो it is made up of 3 things. Automata theory, जिसमें हम machines डिज़ाइन करेंगे for solving different problem. Computability theory, जो डिसाइड करता है प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट तक सॉल्व हो सकता है, एंड computational complexity theory, जो प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट तक सॉल्व हो सकता है ये तो तय करता है, प्लस उसकी एफिशिएंसी भी डिसाइड करता है कि कितना टाइम कितना स्पेस लेगी। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी विल बी डाइविंग इनटू द एक्चुअल यूनिट नंबर 1, ठीक है?